ओके सो लास्ट क्लास हमने स्टार्ट किया था abstraction. What is abstraction, why do we use abstraction, खत्म. आई विल क्विकली रिकैप कि हम लास्ट क्लास में क्या देखे. तो हमने abstraction देखा था. abstraction, as you know, abstraction, uh, it is a process of hiding the implementation it is a process of hiding the implementation details and only expose the process of hiding the implementation detail stands for implementation means method, function, behavior. Now abstraction, using abstraction, what is the benefit? So we do not need to tell the what is the actual working of the functionality. We do not need to tell that, right? So we achieve abstraction in Java using abstract class and abstract class and interface. के बाद हमने देखा था कि actually what is concrete class and everything, right? What is concrete method? Concrete method. Abstract means ये भी हमने देखा है कि abstract stands for incomplete. Abstract stands for what we are talking about, incomplete. Concrete method, a method which has a body curly braces के साथ, called as concrete. एग्जाम्पल हमने अभी कहा था कि कोई क्लास में अगर अभी तक जो भी मेथड्स हमने डिफाइन करी है सारी कॉन्क्रीट मेथड. वॉइड वन, इस मेथड को आप बोलोगे कॉन्क्रीट, और जो क्लास लिखा है उस क्लास के क्लास class contains only only concrete method. concrete मतलब complete का मतलब क्या होता है? concrete information that is the complete. We talked about what is abstract class. Is abstract class a class which is created the abstract modifier, correct? Then abstract modifier. Example, write the abstract keyword class. Right? Abstract class means it is an incomplete class. It is an incomplete. So since it is an incomplete, so that cannot create the object of this. Incomplete declared किया का object आप create. Then we talked about abstract method also. Abstract method क्या होता है? A method is created using an abstract modifier without example. You know that, let's say I write abstract keyword, abstract void abstract. आपने abstract keyword फिर आपने
ये अभी abstract मेथड लिख लिया, इसका मतलब होता है कि इट इज एन इनकम्प्लीट मेथड, मतलब इट इज एन इनकम्प्लीट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अभी ये इनकम्प्लीट मेथड आप कॉन्क्रीट क्लास में तो, कॉन्क्रीट मतलब कंप्लीट, कॉन्क्रीट मतलब के अंदर आप इनकम्प्लीट मेथड, तो वी कैनॉट राइट abstract methods, और नहीं लिख सकते आप मेथड्स इनसाइड द right abstract methods inside the concrete. What is the ideal place to write abstract methods? We can write abstract methods inside the abstract class, और ये हमने देखा था। उसके बाद we talked about कि कैसे abstract class, अभी abstract class incomplete, ये क्लास कंप्लीट, उसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर, नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट। उस क्लास के अंदर क्या क्या लिख सकते, पहले ये क्वेश्चन था कि उस क्लास के अंदर आप क्या क्या लिख सकते, what all things can be, what all components can be part of abstract class। मतलब एक abstract क्लास में आप क्या क्या कंटेंट लिख सकते हो, मैंने बहुत सिंपली बताया था, एवरीथिंग फ्रॉम द grid class प्लस can we keep abstract class empty? Yes, we can keep abstract class also। अब मुझे बताओ कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, व्हेन यू ट्राई टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएशन में। लेकिन फिर आप ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं कर सकते, तो फिर उसका कैसे कॉल, इंटरफेस, इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता, तो आप कंस्ट्रक्टर लिख ही नहीं सकते। मेरा क्वेश्चन है कि abstract क्लास कंस्ट्रक्टर लिख सकते हो क्या, abstract क्लास में कंस्ट्रक्टर लिख सकते हो क्या आप, बोला कैन राइट एवरीथिंग फ्रॉम द कॉन्क्रीट, तब क्या क्या लिख सकते हो आप, सब कुछ, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल्स लिख सकते हो आप, इंस्टेंस मेथड्स लिख सकते हो, उसके बाद इंस्टेंस ब्लॉक्स लिख सकते हो, कंस्ट्रक्टर लिख सकते हो, उसके बाद नेस्टेड क्लासेस लिख सकते हो, उसके बाद स्टैटिक वेरिएबल्स लिख सकते हो, स्टैटिक मेथड्स लिख सकते हो, ब्लॉक लिख सकते हो, ये सब कुछ लिख सकते हो, प्लस स्टैक मेथड लिख सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन वही है कि इसका ऑब्जेक्ट आप क्रिएट नहीं, उसका कंसिडर कैसे उसका इंस्टेंस ब्लॉक कैसे, तो पहला थिंग, कैन वी राइट कैन वी राइट द कंस्ट्रक्टर, ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार पूछे जाते हैं, कैन वी राइट द कंस्ट्रक्टर साइड द abstract class? Yes, how to execute, how to, right answer is yes we can, how to execute that। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इनहेरिटेंस का मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है, ऊपर कीवर्ड क्या करता है, ये सारी पता होनी चाहिए, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस मतलब वी ट्राई टू रीयूज द कोड फ्रॉम वन क्लास, डिफाइन वन क्लास एंड other class, get one class and we try to reuse the code in, तो उन दोनों में जो रिलेशनशिप फॉर्म होता है, एक्सटेंड या इम्प्लीमेंट, अभी आपको ये पता होगा जब भी आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट,
acquires all the non-private the parent class to। तो जब भी आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल होगा चाइल्ड क्लास, फिर उस चाइल्ड क्लास के इट विल गिव कॉल टू द सुपर क्लास, राइट। तो वी create a subclass, create a concrete subclass, we create a concrete as a subclass, concrete subclass, create the object of from child class or subclass constructor, there will be call to the super class, will be super class। ये क्लियर है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू एक्सेस, अभी लेट से आपने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं, मेथड्स, यहाँ पर सेम क्वेश्चन हो सकता है कि इंस्टेंस ब्लॉक लिख सकते हो, कैन यू राइट कंस्ट्रक्टर, यस। इंस्टेंस ब्लॉक लिख सकते हो क्या, यस। इंस्टेंस ब्लॉक कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैन यू राइट इंस्टेंस ब्लॉक set insta class, if yes, how to execute that, yes we can write, we create a subclass and create the object of it, then from subclass constructor they will be called to the superclass constructor, from superclass constructor there will be called to the, मतलब पहले आप चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे, वहां से सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, और सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर से वहां पर सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट, राइट। देन हाउ टू एक्सेस instance variables, that's and क्लास डिफाइन तो किया आपने, तो कैसे एक्सेस करो, हाउ आर यू गोइंग टू एक्सेस, सॉरी ललित, इनहेरिटेंस यूज करना पड़ेगा, तो आपको सेम, we create the subclass, concrete subclass, create the object, and we get the reference, from that reference वहां पर भी एक गड़बड़ है, हाँ इंस्टेंस वेरिएबल आप एक्सेस कर सकते हो, कौन से, वहां पर भी आपको पता है, वहां पर भी एक इशू है क्या, उस रेफरेंस से आप एक्सेस कर सकते हो मेंबर्स, इन सेम मेंबर्स अगर चाइल्ड में भी है तो चाइल्ड ओनली एक्सेस होंगे, वेरिएबल्स विल बी फ्रॉम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे आप, किसके हो गए चाइल्ड क्लास के सब कुछ, अगर आप रेफरेंस पेरेंट का लेते हो लेकिन ऑब्जेक्ट किसका लेते हो, चाइल्ड का, तो आप किसके वेरिएबल्स एक्सेस होंगे, पेरेंट क्लास के, और मेथड्स होगी चाइल्ड क्लास, ये बेसिक आपको पता है, राइट। So how do we access the members in child class? Now think of inheritance, there are two statements I am writing, बहुत बार ये भूला जाता हूँ, अभी सब क्लास कौन हो सकता है, सब क्लास कैन बी कॉन्क्रीट क्लास और सब क्लास कैन बी abstract क्लास, सब क्लास कैन बी कॉन्क्रीट क्लास और सब क्लास कैन बी, अगर जब भी कोई एक आप सब क्लास क्रिएट करते हो कॉन्क्रीट क्लास, तो आपको क्या करना पड़ता है, उस abstract क्लास के अंदर जो भी abstract मेथड है उसको ओवरराइड करना, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक abstract क्लास है और उसका आपने एक सब क्लास क्रिएट किया, दैट सब क्लास इज अ कॉन्क्रीट सब क्लास, सब क्लास इज अ कॉन्क्रीट सब क्लास, सब क्लास है कॉन्क्रीट, तो उस कॉन्क्रीट क्लास को क्या कंपल्शन है, उस कॉन्क्रीट क्लास को
ओवरराइड करना, क्या ओवरराइड करना, उसके अंदर जो भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है पेरेंट क्लास वो सारी मेथड्स उसको ओवरराइड करनी पड़ेगी। आई विल राइट दैट। तो सी दिस, whenever one concrete class, किसकी बात हो रही है, one concrete class extends another abstract class, then it is compulsory for the child concrete class override the abstract method। क्या रहा है? Now there is another statement, whenever one abstract class extends another abstract class, then it is optional for the child abstract class override the abstract। का क्या मतलब, लेट्स राइट ऑन दिस। So this is most of the theoretical part, whatever the interview question, here this will be the question। इसके अलावा कुछ questions नहीं। अभी इसमें एक और question है, एक और question है, can we achieve multiple inheritance using abstract class? What do you think? Quickly, yes। लेट्स से मेरे पास एक क्लास है, ए क्लास और बी, सी क्लास इज, अगर ए क्लास में कौन क्या क्या हो सकता है एज वेल एज abstract, यहाँ पर भी इंस्टेंस मेथड है, यहाँ पर भी इंस्टेंस, चाइल्ड क्लास हो गया ना कंफ्यूज। A and B both are abstract classes and C is a concrete class, या कोई भी रहने दो, it is a concrete class या कोई भी abstract class रहने, कोई भी है, तो होगा क्या, इसके पास दो दो वेरिएबल्स होंगे, दो दो मेथड्स होंगे, यहाँ पर भी इंस्टेंस वेरिएबल, यहाँ पर भी इंस्टेंस, यहाँ पर भी इंस्टेंस, यहाँ पर भी, ये कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो चाइल्ड क्लास विल बी कंफ्यूज और नॉट, राइट, we can, but using abstract class can we achieve multiple inheritance? समझ में आ रहा है कंफ्यूजन क्या हो सकता है? अगर ये दोनों ए एंड बी आर abstract क्लासेस, ये चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास कोई भी रहने दो, तो दोनों में भी सेम कंटेंट हो सकता है, दोनों क्लासेस में सेम कंटेंट हो सकते नहीं, तो ये चाइल्ड क्लास बन जाएगा आपका कंफ्यूज, राइट, इसलिए ये सपोर्टेड नहीं। लेकिन इंटरफेस में क्या होता है, अगर ये ए एंड बी बोथ आर इंटरफेसेस, तो इंटरफेस में ये कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, इंस्टेंस वेरिएबल इंस्टेंस मेथड आपके पास होते ही नहीं है, तो उसको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, चाइल्ड क्लास सी डज नॉट हैव एनी कंफ्यूजन बिकॉज the interface cannot does not have instance variable, instance method, constructor block, ये कुछ होता ही नहीं है, तो उसके पास कोई confusion कहीं नहीं, so it is not supported through abstract classes but it is supported through interfaces। that is fully fully unimplemented class बोलते हो, क्योंकि उस क्लास में वो भी क्लास ही है, दैट इज द इंटर, बट उसमें आपको बाय डिफॉल्ट सारी मेथड्स कैसी होगी, abstract, और इंस्टेंस वेरिएबल वहां पर होते नहीं है, कंस्ट्रक्टर भी वहां पर नहीं होता, कंस्ट्रक्टर इज आल्सो। अब मुझे बताओ, मैंने आपको एक और चीज बताई कि जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और उससे कंस्ट्रक्टर से सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अभी यहाँ तो इसके पास दो दो कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे, फिर ए क्लास का भी और बी क्लास का भी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर लिख सकते हो क्या, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर लिख सकते हो, यस, तो दो दो कंस्ट्रक्टर, ए क्लास का भी कंस्ट्रक्टर, बी क्लास का भी कंस्ट्रक्टर, तो सी क्लास को कंफ्यूजन होगा ना कि कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करना है, इधर ए और बी, राइट, समझे? तो इज इट सपोर्टेड सर?
multiple inheritance is not supported, through the class, as there will be confusion for the child class. Which member to? Ah, same. Right? Okay, one last question on the interview perspective. Can we achieve 100% abstraction using abstract class? Can we achieve? There is no, as abstract class can contain non-abstract method. Okay, simple सा question है. Now let's go ahead and try to use this all the stuff. Okay. I'm creating a simple class, parent class. I create a class, parent. I make this class as abstract class, and there I'm writing a abstract method. I write a abstract method void m. Now, I create a concrete class, child exchange parent. You see here, there is a compile time error. Can you tell me what is the compile time error? आपने एक abstract class create किया, उसके अंदर एक abstract method लिखी हो, एक concrete child class create, that is extending parent class. मेरा simple question है, अब जब inheritance होता है, तब child class क्या करता है? Parent class का properties and methods acquire करता है. अभी चाइल्ड क्लास कॉन्क्रीट क्लास ने भी एक्वायर किया होगा जो भी पेरेंट का है. पेरेंट के अंदर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड. क्या बोला मैं? चाइल्ड क्लास ने क्या एक्वायर किया होगा? जो भी पेरेंट क्लास का है वो सब एक्वायर किया ना. तो कॉन्क्रीट क्लास, चाइल्ड क्लास तो कॉन्क्रीट क्लास है, तो वेदर ही कैन होल्ड एब्स्ट्रैक्ट मेथड. कॉन्क्रीट क्लास के अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते. लिखोगे तो कंपाइल टाइम एरर आएगा. इफ आई ट्राई टू राइट एब्स्ट्रैक्ट मेथड हियर, क्या बोल रही है? ऐसे क्लास बनाया, ये बोला कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड cannot be written inside the non abstract class. See, abstract method in non abstract. ये बोल रहा है कि ये आप abstract method नहीं लिख सकते. आपको एक तो मेथड को क्या करना पड़ेगा? बॉडी देना पड़ेगा, तभी आप इसमें लिख. cannot write the incomplete method inside the concrete. अभी आपने डायरेक्ट नहीं लिखा, लेकिन आप क्या कर रहे हो? एक्सटेंड्स पेरेंट. तो पेरेंट के अंदर जो abstract method है वो अभी पार्ट किसका बन गए? चाइल्ड का. तो चाइल्ड क्लास इज अ कॉन्क्रीट क्लास, सो ही कैनॉट होल्ड द abstract method. तो आपको पास एक ऑप्शन है, इस पर्टिकुलर क्लास को बना दो. Now it is not compulsory to override anything. So abstract class can contain abstract method. तो चाइल्ड क्लास भी कैसा बन गया? अभी इस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो क्या? दोनों में से किसी का भी नहीं बना सकते. फिर आप जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे उस क्लास का कोई यूज ही नहीं. मतलब देयर शुड बी समवन हु विल बी यूजिंग ऑल द फैसिलिटीज एंड विल क्रिएट अ ऑब्जेक्ट. अब मैं इसे abstract नहीं बनाता हूँ. तो यहाँ पर देखो,
whenever one abstract class extends another abstract class, then it is optional for the child class to override the abstract method. But whenever one concrete class extends another abstract class, then it is compulsory for the child class override the abstract method. Override कैसे करोगे आप? कंपार्ट टाइमर गया आपने क्या किया कंपलसरी? आप अभी देखो, इफ आई रिमूव दिस व्हाट इज द थिंग? अभी abstract क्लास की जो abstract मेथड है वो किस में इनहेरिट हो रही है? चाइल्ड क्लास। लेकिन चाइल्ड क्लास कैन नॉट कंटेन द abstract मेथड, इसलिए आपको क्या करना पड़ता है? ओवरराइट करना पड़ता है दिस मेथड को। सो राइटिंग द मेथड इन द चाइल्ड क्लास विद द सेम नेम, सेम सिग्नेचर एंड सेम रिटर्न टाइप। लिख लिया हमने ये, क्लियर? तो मेथड ओवरराइड करना कब कंपलसरी है? व्हेन इट इज कंपलसरी टू ओवरराइड अ मेथड, abstract मेथड, जब चाइल्ड क्लास आपका कॉन्क्रीट होगा। तो चाइल्ड क्लास जब कॉन्क्रीट क्लास होगा तब उसको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा? ओवरराइड करना पड़ेगा। तो ही हैज टू कंपलसरी ओवरराइड द मेथड। क्लियर ये वाला? अभी इसको कैसे यूज करोगे आप? दूसरा एक क्वेश्चन था, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है मेरे पास, यहाँ पर भी ये कंस्ट्रक्टर लिखता हूँ मैं, चाइल्ड, चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर, दोनों कंस्ट्रक्टर है। तो मैं इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो। विच क्लास ऑब्जेक्ट आई कैन क्रिएट? विल डू दैट। कैन आई डू दिस? पेरेंट पेरेंट न्यू, कर सकता हूँ मैं ऐसे। नाउ आई विल कॉल द मेथड पेरेंट डॉट, मेथड कॉल होगी चाइल्ड ऑब्जेक्ट। इस पेरेंट का कैसे कॉल होगा? पेरेंट के पास मेथड ही नहीं। तो सेम मेथड कहाँ पर है? पेरेंट में भी और चाइल्ड में भी। तो किसकी मेथड कॉल होगी? पेरेंट क्लास रेफरेंस चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। इस केस में होता क्या है? इफ मेंबर्स आर सेम इन द पेरेंट एज वेल एज इन द चाइल्ड, तो इसका एक्सेस होगा, वेरिएबल्स विल बी फ्रॉम पेरेंट एंड मेथड्स विल बी फ्रॉम थर्ड केस। आपने ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड का, यहाँ से चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वहां से फिर पेरेंट क्लास का कॉल होगा। पहले पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, और फिर आप मेथड। क्रिएटिंग लोकल इनर क्लासेस इट इज इजी, क्योंकि मैं बार बार वही सेम क्लास के नाम यूज जगह पर। मेरे यहाँ पर कोई क्लास बनाया मैंने, या कोई भी आप नाम दे सकते हैं पेरेंट क्लास। अब इस क्लास को मैं बना रहा हूँ M3, और मैं एक और अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहा हूँ प्लस प्लस एक्सचेंज। अब मैं यहाँ पर बस लिख रहा हूँ मैं मेथड, मेथड से M1 M2, और मैंने सब क्लास क्रिएट किया क्लास भी, और वहाँ पर मैंने एक मेथड और ऐड करी है M1। एक और क्लास क्रिएट कर रहा हूँ क्लास C एक्सटेंड्स। कैन यू टेल मी
व्हाट इज द कंपाइल टाइम? क्लास बी ने एक ही मेथड ओवरराइड किया। फॉर हिम इट इज ऑप्शनल, करे तो भी चलेगा, नहीं करे तो भी। अभी कंपलसरी क्लास सी को क्या है? एक मेथड तो कॉन्क्रीट बन गया एम, M2 और M3 इज पार्ट ऑफ सी क्लास आल्सो, तो उसको क्या करना पड़ेगा? दोनों मेथड ओवरराइड करना। आपने कहाँ पर लिखी है M2, कहाँ पर? सी। क्लास ए, क्लास बी, क्या क्या? आवाज क्लियर नहीं आ रहा। देखो ये क्लास ए abstract क्लास है, उसकी तीन मेथड abstract मेथड है, उसमें से बस एक ही मेथड ओवरराइड करी, M1। उसको कंपल्शन नहीं है करने का। अब ये मेथड में हटा दूं यहाँ पर, ये फिर यहाँ पर रोने लगेगा क्योंकि उसके पास भी abstract मेथड आ गई। ने क्या कर दिया फिर? M1 मेथड ओवरराइड कर। अभी सी क्लास को अभी ये मेथड हटा दोगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर देगा, क्योंकि अभी क्लास सी में दो abstract मेथड्स इनहेरिट हो गए। एक तो यहाँ पर बन गया कॉन्क्रीट, लेकिन ये बाकी दो मेथड्स अभी भी अब्स्ट्रैक्ट ही है, उसका कोई बॉडी नहीं है किधर भी। इस क्लास को कंपलसरी क्या करना पड़ेगा? ओवरराइट करना। मैं फाइनली सी सी इक्वल टू न्यू सी कर सकता हूँ, और सी डॉट वन एंड ठीक, वन M2 एंड लेट्स रन दिस। क्लास ए इज एक्सटेंड बाय क्लास बी, क्लास बी इज एक्सटेंड बाय क्लास सी, और मैंने यहाँ पर सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तीनों का मैंने कॉल किया। M1 मेथड कहाँ पर डिफाइंड है? बी क्लास में। और M2 और M3 कहाँ पर डिफाइंड है? क्लास सी। अरे ऑप्शनल है, उसको नहीं करना है तो भी चलेगा, ये नहीं करता है तो भी चलेगा। तो कहाँ पर करना पड़ेगा आपको? हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि abstract क्लास को कंपल्शन नहीं ओवरराइड करने का। कंपल्शन किसको है? कॉन्क्रीट क्लास। अभी देखो यहाँ पर एक और मेथड डिफाइन करता हूँ क्लास बी में। अब मुझे बताओ क्लास सी को कितने मेथड्स ओवरराइड करने पड़ने? क्लास बी के पास कितने मेथड्स अभी इनहेरिट हो गए? चार। क्लास ए के तीन मेथड कहाँ पर आए? क्लास बी में। तो क्लास बी में टोटल कितने बड़े हैं? क्लास बी में कितने मेथड है? चार। अभी वो चारों के चारों मेथड्स किसको ओवरराइड करने पड़ेंगे? राइट, चारों के चारों मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा। लेकिन अभी ऐसा भी हो सकता है ना कि क्लास बी ने भी कुछ ओवरराइड करके रखा हो, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी। अभी क्लास सी को चारों के चारों मेथड्स ओवरराइड करने पड़ेंगे। ये ओवरराइड कर दिया, यहाँ पर आप लिख दो M1 M2 ठीक। मैं बस एक ये बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि अगर कोई सब क्लास होता है तो उसको क्या करना पड़ता है। कॉन्क्रीट क्लास होगा तो उसको सारी अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ओवरराइड करनी पड़ेगी, और अब्स्ट्रैक्ट होगा तो उसके लिए कोई कंपल्शन नहीं। ठीक है। नाउ अगर मैं सेम मेथड यहाँ पर डिफाइन करता, कौन सी मेथड? M1 और M2, मुझे ये M1 और M2 फिर से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि M1 M2 ऑलरेडी ओवर रिटन है। तो कॉन्क्रीट मेथड्स कहाँ पर आ गई? सी में। यहाँ से M1 और M2 में कॉन्क्रीट मेथड्स आ गए, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? कॉन्क्रीट मेथड को, अब्स्ट्रैक्ट मेथड को बना दिया कॉन्क्रीट, और सेम मेथड कहाँ पर इनहेरिट हो गई? क्लास में। तो उसको ओवरराइड करने की जरूरत नहीं है अभी। सेम
M1 M2 यहाँ पर भी आ जाएगा कॉन्क्रीट, और M3 M4 एज इट इज। क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग? M1 M2 M3। ओके, वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेट्स से दिस इनहेरिटेंस में ये होना चाहिए था। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। हम class A, this is actually inheritance questions. Class A contains one method, one, then मैं class B क्रिएट किया, class B extends A, यहाँ पर M2 मेथड दे दिया। Now another class C extends yeah M3। क्लियर है? क्लास A B और C, A में M1 B में, अब मैं 3 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, A इक्वल टू A। ये बताओ इस रेफरेंस का यूज करके सारी मेथड, सिर्फ क्लास, कौन सी मेथड? सबको दूसरा ये ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, बी बी इक्वल टू यू बी। तो इस रेफरेंस बी का रेफरेंस यूज कर मैं कितनी सारी मेथड कॉल कर सकता हूँ? कौन सी? M1 एंड डॉट, परफेक्ट। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट अभी बी का ही बनेगा, ऑब्जेक्ट अभी बी का ही बनेगा, लेकिन मैं उसको स्टोर करूंगा यूजिंग पेरेंट क्लास। अब मुझे बताओ कौन सी मेथड कॉल कर सकता हूँ मैं? दोनों? थर्ड केस मुझे बता सकते हो आप? थर्ड सिनेरियो, पेरेंट क्लास रेफरेंस चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, क्या है वो केस? क्या है वो पेरेंट क्लास रेफरेंस चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होता है? उसमें भी 3 केसेस है ना, members only present inside the parent class, members only present in the child class, members are present in both parent and child। सिनेरियो नंबर 3, उसके 3 पेरेंट क्लास रेफरेंस चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका सिनेरियो, उसके 3 केसेस है। मेंबर इज ओनली प्रेजेंट इन द पेरेंट क्लास, मेंबर इज ओनली प्रेजेंट इन द चाइल्ड क्लास, मेंबर इज प्रेजेंट इन बोथ है। अभी मुझे बताओ क्या केस है? अभी आप बताओ, M1 मेथड इज प्रेजेंट इन बोथ A as well as B, and M2 method is present in B। A में प्रेजेंट है क्या M2 मेथड? तो आप M1 मेथड आराम से कॉल कर सकते हो, बट व्हाट अबाउट M2 मेथड? यू कैन नॉट कॉल टू, if the member is only present in the parent class, access it from parent class. If member is only present in the child class, get a compile time error, get a compile time error। or third case, if member is present in both parent and child, member will be accessed from the method will be from child class and variables will be from parent class। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है? M1 is present in both A as well as B। टेक्निकली M1 मेथड कहाँ पर है? दोनों में भी है ना, है कि नहीं? अभी M2 मेथड किधर है? बस बी में, बस बी में। आप अभी इस केस के लिए तो आप ये कॉल नहीं कर सकते M2 में। ये क्लियर है? नाउ थर्ड, आई क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ C इक्वल टू न्यू, क्या क्या मेथड्स कॉल कर सकते हो आप? M1 M2
and m3, क्योंकि m1 is inherited into m2 and m2 m1 is inherited into b class and b class has m2, and that both the methods are now inherited to c class. C class has m1 m2 and now interesting, if I change this to b, कितने सारे मेथड्स m1 and m2, परफेक्ट। m3 क्यों एक्सेस नहीं कर सकते? परफेक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट, क्योंकि m1 m2 तो b में भी है और c में, राइट। अब m3 मेथड कहां पर है? बस c में, b में है क्या? नाउ लास्ट वन, ओनली m1, ओनली m1, परफेक्ट, समझे? ये इनहेरिटेंस का पार्ट है, ये हमने देखा था, राइट। मैंने आपको चार सिनेरियोज दिए। पहला पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट, पेरेंट क्लास रेफरेंस में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सारा पेरेंट क्लास का। एक दूसरा केस बताया था, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट लेकिन चाइल्ड क्लास का रेफरेंस, वो क्या है? कंपाइल टाइम एरर। तीसरा आपको बताया था कि चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, चाइल्ड क्लास रेफरेंस, अगर पेरेंट का है तो पेरेंट का एक्सेस करो, अगर बस चाइल्ड के पास है तो चाइल्ड का एक्सेस करो, अगर दोनों दोनों के पास है तो किसका एक्सेस करो? चाइल्ड का। तो चाइल्ड का भी केस पूरा क्लियर था आपका सिनेरियो। एक बस फाइनल में जो था, पेरेंट क्लास रेफरेंस, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, इसमें आपके पास तीन केसेस थे, ओनली प्रेजेंट इन पेरेंट क्लास, ओनली प्रेजेंट इन चाइल्ड क्लास, प्रेजेंट इन बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड। जब पेरेंट के पास होगा तो बस पेरेंट का एक्सेस होगा, बस चाइल्ड के पास होगा तो फाइल टाइम एरर, और दोनों के पास होगा तो वेरिएबल्स विल बी फ्रॉम पेरेंट क्लास एंड मेथड्स विल बी फ्रॉम चाइल्ड क्लास। ये वाला क्लियर है, राइट? ओके, क्लियर, कम बैक। What do you think? Any other point is something you're like facing difficulty? Abstraction होता क्या है? What is concrete method? What is concrete class? What is abstract class? What is abstract method? What all things we can write inside the abstract class? सारी चीजें plus abstract method लिख सकते हो. We can keep also. Can we create the constructor inside the abstract class? एक और चीज, can we create the object? Can we create the object of an abstract class? There is this. It is an incomplete class. ठीक है, कैन वी राइट द कंस्ट्रक्टर? हाँ बोलो। उसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, इंटरफेस का भी। नाउ कंस्ट्रक्टर लिख सकते हो क्या आप? अब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप लिख सकते हो। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि उसको कैसे एग्जीक्यूट, आपको पता है कि आप क्या करोगे, सब क्लास क्रिएट करोगे कॉन्क्रीट, उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तब उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर से सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। दैट्स हाउ यू एग्जीक्यूट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट। सिमिलरली इंस्टेंस ब्लॉक कैसे एग्जीक्यूट करोगे अब्स्ट्रैक्ट क्लास का? चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर, और पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में दो चीज होगी, उसका पेरेंट तो कोई है नहीं तो सीधा सीधा क्या होगा? ऑफ एग्जिट। हाउ टू एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल इंस्टेंस ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्लास, सब्जेक्ट ऑफ सब क्लास एंड यूजिंग दैट रेफरेंस। और ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक कोई कॉन्क्रीट क्लास अब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करता है तो इट इज कंपलसरी फॉर दैट चाइल्ड कॉन्क्रीट क्लास टू ओवरराइड द अब्स्ट्रैक्ट मेथड, और अगर कोई अब्स्ट्रैक्ट क्लास दूसरे अब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करता है तो उसके लिए कंपलसरी नहीं टू
क्योंकि एक abstract क्लास से abstract मेथड इनहेरिट हो रही है और दूसरा भी abstract, कोई कंपल्शन नहीं है, राइट? देन कैन वी अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग abstract क्लास? आंसर इज नो, क्योंकि देयर विल बी कंफ्यूजन फॉर द चाइल्ड क्लास विच मेंबर टू एक्सेस, कि दोनों पेरेंट क्लास अगर abstract क्लास, इसमें भी इंस्टेंस वेरिएबल हो सकता है, इसमें इंस्टेंस वेरिएबल हो सकता है, उस केस में क्या होगा फिर? कंफ्यूजन, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अवेलेबल। दूसरा, कैन वी अचीव 100% abstraction यूजिंग abstract क्लास? आंसर इज नो, क्योंकि उसके अंदर आप नॉन abstract मेथड्स भी लिख सकते, नॉन abstract मतलब इंस्टेंस। one last thing we'll talk about, class C extends E और यही रहेगा, ध्यान देना। अब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ न्यू सी। सबसे पहले ए इक्वल टू न्यू ए, ऑब्जेक्ट बना सकते हो क्या आप? बता दे रहा हूँ, बना सकते हो, यस। ए डॉट ए, ए डॉट ए, कौन सा आउटपुट आएगा? 1 आएगा, 100 आएगा? वन आएगा। रहेगा। कंफ्यूजन क्यों? क्या कंफ्यूजन? तो बी और सी, बी और सी में कॉन्सेंट्रेट करो, ए दोनों में भी है, उसका खुद का एक्सेस होगा ना पहले तो, इफ मेंबर इज अवेलेबल इन बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड। अभी यहाँ पर यही आएगा ना, कंफ्यूजन क्यों होगा उसको? ये दोनों में से चॉइस करना है उसको, आइदर दिस वन और दिस वन। ऑब्जेक्ट किसका है? सी क्लास का। हाँ तो ओवरराइड नहीं होता, दिस विल रिमेन टू दिस क्लास ओनली, विल रिमेन विद, राइट? सेम ही है ना, आपने फिर से क्यों लिखा? यू आर नॉट हैप्पी विद दैट वैल्यू, राइट? नाउ लास्टली इक्वल टू डॉट ए, आउटपुट आएगा। कंफ्यूजन क्यों है? सी क्लास का ही वैल्यू है ना। नहीं नहीं, देखो यहाँ पर सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सी क्लास का रेफरेंस है, किसका एक्सेस होगा? पेरेंट का होगा तो पेरेंट का होगा, नहीं तो चाइल्ड का। तो लेकिन ए दोनों में भी है, पेरेंट में ए इज प्रेजेंट इन बोथ, हु इज द पेरेंट ऑफ सी? सी। तो बी में भी है और सी में भी है, तो किसका वैल्यू एक्सेस होगा? खुद की होगी ना। अगर दोनों के पास, पेरेंट के पास भी मोबाइल, आपके पास भी मोबाइल है, किसका एक्सेस करोगे आप? क्या एक्सेस करो? अब इस केस में बी भी इक्वल टू न्यू, ए यहाँ पर भी है और सी मतलब ई यहाँ पर भी है, लेकिन रेफरेंस किसका है? बी का। पेरेंट क्लास रेफरेंस, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, पेरेंट क्लास रेफरेंस
चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, वो टिपिकल हमारा कंफ्यूजिंग वाला सिनेरियो। पेरेंट क्लास से रेफरेंस, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट में क्या होता है, तीन केसेस, ओनली प्रेजेंट इन द पेरेंट क्लास, ओनली प्रेजेंट इन चाइल्ड क्लास, प्रेजेंट इन बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड। ओनली प्रेजेंट इन पेरेंट क्लास होगा तो पेरेंट क्लास का, ओनली प्रेजेंट इन चाइल्ड क्लास तो कंपाइल टाइम एरर, और थर्ड दोनों में प्रेजेंट है तो वेरिएबल्स विल बी फ्रॉम पेरेंट एंड मेथड्स विल फ्रॉम सिंपल। यहाँ पर देखो, हु इज पेरेंट, इज अ ग्रैंड पेरेंट। ए में क्या है, दिस वन ए, और सी में भी ए है। इट इज प्रेजेंट इन बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड, किसका एक्सेस होगा, लेफ्ट हैंड साइड कौन है, ए का एक्सेस होगा। हाँ माइक, ये माइक क्लियर नहीं आता, रेंज नहीं प्रॉब्लम, सही है सब, आपका माइक खराब है आपका, सॉरी। हाँ अभी सही आ रहा है थोड़ा। आवाज ही क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, दैट। ये क्लियर है सबको, दिस थिंग इज क्लियर एवरीवन। आपने इनहेरिटेंस के इंटर क्वेश्चंस गो थ्रू करे थे, वो प्रोग्राम वगैरह, अगर वहां पर गो थ्रू करते क्वेश्चन आपको आ जाता है। ठीक है, चलो, लेट्स सी वन लास्ट थिंग। Now, what are the disadvantages with the abstract class? What are the advantages and what are the disadvantages? एडवांटेज ये है कि अगर आपको पता है कि कुछ मेथड्स का इम्प्लीमेंटेशन आपको पता है, वो लिखो, और कुछ मेथड्स का आपको पता ही नहीं है तो वो डिक्लेयर करके छोड़ दो, अब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर छोड़ दो, देयर इज द एडवांटेज। इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपके पास मल्टीपल इनहेरिटेंस आप अचीव, एडवांटेज क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस आप अचीव कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड और यहाँ पर भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो यू विल नॉट बी एबल टू, will not be able to achieve multiple inheritance क्लास। अभी इसका सोल्यूशन क्या है, अभी ऐसा भी हो सकता है कि नाउ यू वांट टू हैव 100% इनकम्प्लीट मेथड्स, यू आर नॉट श्योर ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, तो आप मुझे 100% सारी मेथड्स क्या करनी, बस डिक्लेयर करनी है, या abstract डिक्लेयर करके छोड़नी है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है आपका इंटर, क्या ऑप्शन है आपके पास, इंटरफेस। अगर आपको पता है कि मेरे पास कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लेटर ऑन आई एम गोइंग टू हैव द इम्प्लीमेंटेशन, अभी के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो वी कैन हैव मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस। अभी लेट से मुझे व्हाट्सएप, लेट से मुझे मैसेज भेजना है, लेकिन मैसेज भेजना मुझे अभी डिसाइडेड नहीं है, बाद में डिसाइडेड है, वो व्हाट्सएप थ्रू जाएगा या फेसबुक थ्रू जाएगा, ट्विटर थ्रू जाएगा या टेक्स्ट मैसेज जाएगा या ईमेल जाएगा, ये बाद में डिसाइड करेंगे, अभी मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है। तो इन दैट केस यू गो विद द इंटरफेस। तो इंटरफेस क्या है, व्हाट इज इंटरफेस, इट इज ए फुली अनइम्प्लीमेंटेड क्लास। अनइम्प्लीमेंटेड मतलब it is also type of a class, it is also type of a class। unimplemented मतलब incomplete, it is a
इनकम्प्लीट, इट इज ए फुली अनइम्प्लीमेंटेड क्लास, इट इज ए इनकम्प्लीट क्लास। अभी इंटरफेस कैसे बनाते हो आप? जैसे आप क्लास बनाते हो वैसे ही यहाँ पर इंटरफेस कीवर्ड बनाना पड़ता है आपको। हाउ डू वी डू दैट? इंटरफेस, और इंटरफेस का नाम जो भी होगा आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। पहले क्या है, इंटरफेस इज ऑल्सो a type of a class but which is a fully unimplemented class, means is a incomplete class, is an fully incomplete, is a fully incomplete, fully incomplete मतलब उसके अंदर जो भी मेथड्स है सारी सारी मेथड्स कैसी है, इनकम्प्लीट। नाउ नेक्स्ट फॉलो क्वेश्चन, इस क्लास के अंदर आप क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, व्हाट ऑल थिंग्स कैन राइट इनसाइड दिस पर्टिकुलर दिस काइंड ऑफ अ क्लास। अभी इसको हम इसके अंदर आप क्या क्या लिख सकते हैं और क्या क्या लिख नहीं। तो व्हाट ऑल कंपोनेंट्स are valid and invalid inside the interface as part of Java 8। Java 8 के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, फिर लेटर ऑन में बहुत सारी चेंजेस है। बिल्ड ऑफ क्या क्या लिख सकते हो, वैलिड, इनवैलिड। ठीक, मैं वैलिड की बात करता हूँ, इनवैलिड की बात करने की जरूरत है नहीं। सबसे पहला कंपोनेंट है वेरिएबल्स का मेथड्स, दूसरा क्या होता है कंस्ट्रक्टर्स, ब्लॉक्स एंड नेस्टेड। नाउ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, बाय डिफॉल्ट variables are public, static, final। अगर वेरिएबल लिखते हो तो वो कैसे वेरिएबल्स है, पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल। टॉक अबाउट द फाइनल वर्ड क्या होता है। देन उसके बाद मेथड, बाय डिफॉल्ट मेथड्स आर पब्लिक, अब्स्ट्रैक्ट। मेथड्स कैसी है, पब्लिक, अब्स्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर्स आर नॉट अलाउड, आर नॉट अलाउड। ब्लॉक्स, both instance block as well as static blocks are not allowed. Both instance block as well as static blocks are not allowed. Nested classes, by default nested classes are public, static। ठीक, अभी जावा 8 में एक और, अभी लेट्स से आई विल जस्ट क्रिएट अ टेबल whether it is allowed or not। I will just write what is allowed and check, kind of a checklist I will just maintain। uh, what all things we know, what are the components we have, what are the components, can you tell me the names one by one, all the components? Block, then inst or inner class, constructor और वह इंस्टेंस है स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक लॉग, दैट्स ठीक। इसमें से क्या क्या अलाउड है आई विल जस्ट टेल। इसमें से बस ये अलाउड,
सारा अलाउड है, ये सारा बाकी वेरिएबल्स आर नॉट अलाउड, allowed in block is not allowed, inner class is also, and setter is also not allowed, static block is also, तो बाकी यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल्स भी आर अलाउड, यस these are static variable is allowed, static method, static nested class are allowed, are allowed. These three, these are the things which are not याद रहेगा। तो इंस्टेंस स्पेसिफिक जो भी है, इंस्टेंस स्पेसिफिक क्या क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस ब्लॉक, इनर क्लासेस एंड इनर क्लासेस, उसके बाद कंस्ट्रक्टर, सब जो भी ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है ये सब कुछ। अभी स्टैटिक में यहाँ पर स्टैटिक ब्लॉक भी अलाउड नहीं है, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। अभी अलाउड क्या क्या है, वेरिएबल्स कौन से रहेंगे, स्टैटिक वेरिएबल्स, कौन से वेरिएबल्स रहेंगे, स्टैटिक वेरिएबल्स, स्टैटिक मेथड लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, स्टैटिक नेस्टेड क्लास, अभी कंस्ट्रक्टर अलाउड नहीं है, ब्लॉक्स अलाउड नहीं है, बाकी क्या बचा आपके पास, वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स कौन से रहेंगे, स्टैटिक मेथड्स, मेथड आपके पास तीन मेथड, मेथड लिख सकते हो आप, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखोगे ना आप, के बाद स्टैटिक मेथड लिख सकते हो, अवॉइड की बात हो रही है, और उसके बाद डिफॉल्ट मेथड भी लिख सकते हो, डिफॉल्ट मेथड क्या होता है, वी विल टॉक अबाउट दिस, अभी वो अपना वाला डिफॉल्ट मत समझो, डिफॉल्ट मेथड इज अ न्यू फीचर अबाउट दैट, कंस्ट्रक्टर अलाउड नहीं है, ब्लॉक्स अलाउड नहीं है, बचा क्या फिर, नेस्टेड क्लास, नेस्टेड क्लास में क्या है आपके चीज़ है आपके पास, क्या है, स्टैटिक, अगर आपको आपने ये याद रख लिया, ऑल सॉर्टेड विद वेरिएबल्स कैसे रहेंगे, स्टैटिक, मेथड आपके पास तीन है, अब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक और डिफॉल्ट, ब्लॉक्स है ही नहीं, कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, और स्टैटिक नेस्टेड क्लास कौन सा अवेलेबल है, स्टैटिक नेस्टेड, ये सब अवेलेबल है, इतना ही हो सकता, दिस इज व्हाट वी कैन राइट इनसाइड अ इंट, ब्लॉक्स अलाउड नहीं है दोनों भी, कंस्ट्रक्टर अलाउड नहीं है, बचे तीन अभी, वेरिएबल बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि स्टैटिक है, मेथड्स आपके पास तीन मेथड लिख सकते हो आप, अब्स्ट्रैक्ट मेथड, स्टैटिक मेथड और डिफॉल्ट मेथड, और नेस्टेड क्लास में एक ही है आपके पास, कौन सा है, स्टैटिक नेस्टेड, राइट, स्टैटिक नेस्टेड, कैन यू राइट मेन मेथड इनसाइड द इंटरफेस, कैन यू राइट मेन मेथड इनसाइड द इंटरफेस, ये देखो इधर, मेन मेथड, मेन मेथड इज अ स्टैटिक है, राइट, चलो इतना सारा चीज लिख सकते, क्या नहीं लिख सकते हो, इससे अच्छा फोकस करो क्या लिख सकते, अभी आप इन शॉर्ट में इंस्टेंस स्पेसिफिक जो भी है वो सब कुछ अलाउड नहीं, इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल अलाउड नहीं है, मेथड नहीं है, ब्लॉक नहीं है, क्लास नहीं है, और स्टैटिक ब्लॉक भी अलाउड नहीं, ये सारी चीजें, बाकी बचा क्या, ब्लॉक भी अलाउड, दैट इज ऑल्सो, हाँ स्टैटिक है लेकिन फिर भी अलाउड नहीं, विल टॉक अबाउट, इतना सारा अलाउड नहीं। अब ये सारा जो भी उन्होंने किया है ये सारा रिस्ट्रिक्शन
तो टू सपोर्ट ये सारा सब कुछ इसलिए so that they can support multiple inheritance. So all this structure, what they have done, support multiple inheritance. So if I ask you a question, how multiple inheritance is supported? मल्टीपल इनहेरिटेंस उसने कैसे सपोर्ट किया है? मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब one class acquires properties and methods from more than one classes. अभी आपका एक चाइल्ड क्लास हो सकता है, कैन गेट द प्रॉपर्टीज फ्रॉम मल्टीपल इन, राइट? So how that is possible with the interfaces? How multiple inheritance possible of बहुत सिंपल है, पढ़ा भी है ऑलरेडी। अभी लेट से पास मेरे पास दो इंटरफेसेस I1 और I2 और एक क्लास है C, ही इज एक्सटेंडिंग और ही इज इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज फ्रॉम। अब C क्लास को कुछ कंफ्यूजन है क्या? इज देयर एनी कंफ्यूजन फॉर द C क्लास? व्हाई देयर इज नो कंफ्यूजन? बिकॉज तो भी इंटरफेस क्या नहीं, सेटर नहीं है, वेरिएबल नहीं है, सेट नहीं है, ब्लॉक नहीं है, स्टैटिक ब्लॉक नहीं है, क्लास नहीं, फिर C क्लास को कुछ कंफ्यूजन है? अभी दोनों में abstract मेथड हो सकती है, दोनों इंटरफेस में abstract मेथड हो सकती है, लेकिन abstract मेथड कहीं पर भी होने दो, ओवरराइड किसको करना है? मेथड किसकी कॉल होगी फिर? एल क्लास। अगर दोनों इंटरफेस में सेम abstract मेथड, तो कोई कंफ्यूजन है क्या C क्लास को? सेम मेथड यहाँ पर ओवरराइड कर दो, मेथड जब भी कॉल होगी तो किसकी कॉल होगी? C क्लास की। स्टैटिक वेरिएबल दोनों में भी है, स्टैटिक वेरिएबल कैसे एक्सेस कर? यूजिंग क्लास नेम। इज देयर एनी कंफ्यूजन देन? स्टैटिक मेथड हो तो कैसे एक्सेस करोगे आप? यूजिंग क्लास नेम। वहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है क्या आपको? So this is how multiple inheritance is supported using. Can you write constructor inside the interface? Instance variable, instance method, instance block? No. So why they are not allowed? Support multiple inheritance. Can we create object of an interface? टाइम है अपने पास है? Let's write how multiple inheritance is supported. How multiple inheritance is supported. Think. Since interfaces does not contain instance variables, instance methods, instance block, constructor. In short आप बोल सकते हो कि instance specific does not contain instance variable, instance method, instance block, constructor. So there won't be any confusion for the, if it is reuse, it is reusing the code from then one interfaces. So it is one class can implement then one. Can we create object? Can we create object of an face?
ठीक है. Now, how to create a subclass of an interface? How to create subclass of an interface? आपको पता होगा तीन चीजें. One class extends another class, one interface extends another interface, one class implements another. I hope you remember this. No problem. How to create a subclass of an interface? Um, Create a class, say, which implements. Example. Let's say we use implements की करते हो. Use implements. Example. Let's say we have interface message service. Then let's say there is a method void send message, void send message. अब यहाँ पर आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. बाय डिफॉल्ट ये ऐड क्या करता है, पब्लिक आपने क्रिएटेड इंटरफेस. अब मुझे इसका सब क्लास क्रिएट करना है, तो आप कैसे क्रिएट करते हो? क्लास मैसेज सर्विस IMPL इम्प्लीमेंट्स और आप लिखते हो और आपको पता होगा अभी ये abstract मेथड है. द abstract मेथड. नाउ दिस abstract मेथड इज पार्ट ऑफ कॉन्क्रीट क्लास. आपको क्या करना पड़ेगा? ओवरराइट करना पड़ेगा. तो आपको करना पड़ेगा void public void the we create the subclass. फिर क्या करोगे आप? इस go to new IMPL चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे एंड आई विल से सर्विस डॉट डॉट stop the interface defined the class and object call the method subclass. This how to create a subclass of an interface, create a subclass, and the implement keyword and the